and learn you. Assalamu alaikum dear students, I am Dr. Namra and today I'll teach you about managing structure and process. What is management? Basically, management is the process of reaching goals through the use of human resources, technology, material, teamwork, and a position in management is one of the greatest challenges any employee can face. It involves communication, interpretation skills, and different abilities which is need to be executed, planning, organizing, supervision, and the solution of problems. So basically, it is a teamwork which requires time, vision, planning. What is management structure? In any organization, when new employees joins a company or institution, one of the first thing they learn is the company's management structure. What is the structure? What is the infrastructure of the management? It includes understanding of the working relationships with their managers, subordinates, and peer works. Management structures appear in every type of organization, including government department, non-government organizations, NGOs, charities, and even the local sporting association and education institutions also. Choosing the correct management structure ensure an organization's continued growth, content employee, and profitable returns for the shareholders. Choosing the wrong structure creates tension between employee and managers, allow insufficient work practices to flourish and reduce company profitability. In the worst case, an incorrect management structure can lead to company closure. Task definition: how tasks are allocated, how reports to whom, and the formal coordinating mechanisms and interaction pattern will be followed. तो बेसिकली जब भी किसी भी आप ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करते हैं तो आप एज एम्प्लॉयर हैं, आप वहाँ पे देखते हैं कि वहाँ पे अथॉरिटी किसकी है, अथॉरिटेटिव रोल किसका है, मैनेजर आपका जो हुक्मरान है वहाँ पे कौन है, ठीक है। अब देखिए कि वो कोई एनजीओ हो सकती है, स्कूल हो सकता है, इंस्टीट्यूशन, कॉलेज, ऑर्गेनाइजेशन, वॉट एवर। तो आप उसका इंफ्रास्ट्रक्चर, मैनेजमेंट स्ट्रक्चर को देखते हैं, वहाँ पे कौन लोग काम कर रहे हैं, वर्कर कौन से हैं, सबऑर्डिनेट कौन है, आपके कोलीग्स कौन से हैं। और अगर आप इन सब चीज़ों को अंडरस्टैंड नहीं करेंगे, इसके मैनेजमेंट स्ट्रक्चर को, एक ऑर्गेनाइजेशन के, इंस्टीट्यूशन के, तो बेसिकली आपको इसका नुकसान होगा क्योंकि आपकी वर्क एफिशिएंसी, परफॉर्मेंस जो है वो ख़राब हो सकती है अगर आप टीम बिल्डिंग से काम नहीं करते, कोलैबोरेशन से नहीं करते, प्लानिंग से नहीं करते और आपको सुपरवाइज़ नहीं किया जाता, तो वो फ़ायदे के बजाय वो नुकसान होगा। इसलिए जो एक मैनेजमेंट स्ट्रक्चर है उसको अंडरस्टैंड करना, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में या कोई भी टास्क असाइन किया जाता है उसके हवाले से एलोकेट किया जाता है, तो कोऑर्डिनेशन मैकेनिज्म, इंटरेक्शन, ये सब चीज़ों को मद्देनज़र रखना जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बेसिकली देयर आर टू टाइप्स ऑफ मैनेजमेंट स्ट्रक्चर्स टू फैसिलिटेट इफेक्टिव मैनेजमेंट इन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। इट इज़ डिवाइडेड इनटू टू वेज, वर्टिकली एंड हॉरिजॉन्टली। वर्टिकल ऑर्गेनाइजेशन: managers looks up the higher levels of management or down to employees all within a single department. Their goal is to perform a particular departmental function well. तो वर्टिकल ऑर्गेनाइजेशन में ये है कि वो एक नज़रिए से कैसे देखते हैं लोगों को कि आपके सबऑर्डिनेट जो है किस तरह से काम कर रहे हैं, आपकी कोलैबोरेटिव उनकी कितनी एफर्ट्स हैं डिपार्टमेंट को अपलिफ्ट करने में, उसकी सक्सेस को एंश्योर करने में। There are three levels of management in vertically organized companies: top management, middle management, and supervisory level management. Horizontal organization में क्या होता है? This type of organizational structure involves self-managing teams that set their own goals and make their own decisions. This type of management structure is organized by process instead of function and is customer oriented. ठीक है। अब हॉरिजॉन्टल में वो ये कह रहे हैं कि आपने क्या कहना है कि आपने खुद से चीज़ों को सेल्फ मैनेज करना है, टीम वर्क के साथ आपने काम करना है, अपने गोल्स पे फोकस करना है, आपने अपनी डिसीजन खुद लेनी है। और इसके अंदर क्या होता है कि आप जो है वो मिल के काम करते हैं, टीम वर्क में काम करते हैं, कस्टमर ओरिएंटेड होते हैं और डिसीजन लेते हैं एक क्लियर विजन के साथ। देयर आर थ्री कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द हॉरिजॉन्टल ऑर्गेनाइजेशन: सेल्फ मैनेजमेंट, मैनेजिंग टीम, ऑर्गेनाइजेशन बाय प्रोसेस, एंड कस्टमर ओरिएंटेशन। What is collective responsibility? Basically, it is also known as the collective guilt. It is a concept
इन विच इंडिविजुअल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर अदर्स पीपल्स एक्शन। ठीक है, अब इसमें ये कि आप कहीं भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, ठीक है, मे बी यू हैव टू टॉलरेट द नेगेटिव बिहेवियर ऑफ द पीपल, इग्नोरिंग और हार्बोरिंग दैम विदाउट एक्टिवली कोलैबोरेटिंग इन दीज एक्शंस। ठीक है, तो अब किसी को कोई आपको इनकरेज कर रहा होगा, कोई आपको डिस्करेज कर रहा होगा, कोई आपको मोटिवेट कर रहा होगा, तो कोई आपको डिमोटिवेट करता है। तो इसमें आप लोगों को आप तहम्मुल से उनके बिहेवियर को जो है बेयर करते हैं और आप किस तरह के लोगों को एक्शंस को टॉलरेट करते हैं और इसको फिर भी इसको आप सबके काम को सबको टीम वर्क में सब लेकर चलते हैं। ठीक है, तो एक मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि सब ऑर्डिनेट को वो मिलजुल के वो काम करें और कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको असाइन करें ताकि अपनी ऑर्गेनाइजेशन की आप सक्सेस को गोल्स को अचीव कर सकें, उसको मेक श्योर कर सकें। द फर्स्ट वर्क ऑफ लीडरशिप एंड स्टाफ इज़ टू टेक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी फॉर इम्प्रूविंग टीचिंग, लर्निंग एंड वेलबींग। एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में भी डेफिनेटली आप अपनी टीचिंग स्ट्रैटेजीज़ को इम्प्रूव करने के लिए, अपनी लर्निंग को बेहतर स्टूडेंट की बनाने के लिए आप डिफरेंट स्ट्रैटेजी यूज़ करते हैं, डिफरेंट असाइन करते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, और ये लीडर का रोल होता है, प्रिंसिपल का रोल होता है कि उसमें स्टाफ किस तरह से लेकर चलना है। स्टाफ वर्क टुगेदर टू इम्प्रूव टीचर एंड स्टूडेंट्स क्लासरूम प्रैक्टिसेस। तो जहाँ पे आपका स्टाफ इम्प्रूव होगा, ट्रेंड होगा, मिल के काम करने को प्रायोरिटी देगा, तो वहाँ पे आपकी डेफिनेटली आपकी जो है टीचिंग लर्निंग जो है वो इम्प्रूव होगी। अब स्कूल डिसिप्लिन क्यों नेसेसरी है और क्लासरूम मैनेजमेंट के साथ इसका क्या ताल्लुक है, इसको देखते हैं हम कि डिसिप्लिन क्या होता है। बेसिकली स्कूल डिसिप्लिन डिसिप्लिन इज ड्राइव्ड फ्रॉम द लैटिन रूट डिसिप्लिन्स मीनिंग अ pupil or disciple, following and acting upon the rules, regulations and principles already determined by the management of any institute or enterprise is called discipline। मतलब कहीं पे भी आप किसी भी इंस्टीट्यूशन को ज्वाइन करते हैं, वहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशंस क्या हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन क्या हैं, क्या उनके ज़वाबित कवानीन हैं, तो उस सबको फॉलो करना जो है वो डिसिप्लिन कहलाता है बेसिकली। अब स्कूल में अगर हम डिसिप्लिन को इंश्योर नहीं करेंगे तो हम बच्चों को डिसिप्लिन किस तरह से सिखाएंगे, उनके अंदर हम सेल्फ रेगुलेशन की एबिलिटी कैसे डेवलप करेंगे। तो देयर इज़ नीड टू मेंटेन डिसिप्लिन इन अ स्कूल सिनेरियो। तो स्कूल प्रीमिसेस के अंदर डिसिप्लिन को मेंटेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि बच्चों को आप डिसिप्लिन लाइफ का आदी बनाएं। ऑल ऑफ द इंटेलेक्चुअल, सोशल, मॉरल एंड फिजिकल एक्टिविटीज़ सो फॉर एज दे आर कैरिड आउट इन अ कोऑपरेशन विद अदर्स एंड आर डायरेक्टेड टुवर्ड्स द रियलाइजेशन ऑफ सर्टेन पर्पस इज़ डिसिप्लिनरी। तो अब स्कूल के अंदर आप बच्चों की आपने सारी बात उनकी मेंटल, फिजिकल ग्रोथ को इंश्योर करना है, होलिस्टिक डेवलपमेंट फोकस करना है। तो उनको उनकी इंटेलेक्चुअल, उनकी इमोशनल, उनकी सोशल, मॉरल, फिजिकल, कोग्निटिव डेवलपमेंट के हवाले से आपने देखना है कि आप बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप डिसिप्लिन को मेंटेन करें और उनको डिफरेंट एक्टिविटीज़ में भी एंगेज करें और बच्चों को पता हो कि उन्होंने डिसिप्लिन को मेंटेन करना है, डिसिप्लिन को जो है रूल्स को आपने ब्रेक नहीं करना ताकि वो उनकी पर्सनालिटी का पार्ट बन सके, वो सेल्फ रेगुलाइजेशन के अंदर हैबिट डेवलप हो सके। पर्पस ऑफ डिसिप्लिन, डिसिप्लिन गिव्स चिल्ड्रन अ फीलिंग ऑफ सिक्योरिटी, इट enables the children to live according to approved standards, it leads the children to successful adjustment and happiness, appropriate discipline enables the children to accomplish what is required of them, discipline enables the children to control their own behavior। अब डिसिप्लिन होगा तो उनको पता है कि हमने डिसिप्लिन को वायलेंट नहीं करना, अपने बिहेवियर को वो अपने कंट्रोल करना, इमोशन को कंट्रोल करना सीखेंगे। इसी तरह अपनी फीलिंग्स, सेंस ऑफ सिक्योरिटी उनको मिलेगी कि हम एक अच्छे एनवायरनमेंट में हैं, डिसिप्लिन ऑर्गेनाइज एनवायरनमेंट में है, उनके लिविंग स्टैंडर्ड इम्प्रूव होता है। इस तरह जाहिर बात है कि ये चीज़ें जो अपने वो लर्न करते हैं अपनी चाइल्डहुड एज में, वो उनकी पर्सनालिटी का पार्ट बनती जाएंगी आहिस्ते आहिस्ते ग्रेजुअली, जैसे वो एडोलेसेंस लाइफ की तरफ जाएंगे। और एक अच्छी लाइफ और हैप्पी लाइफ गुजारने के लिए डिसिप्लिन को मेंटेन करना कितना ज़रूरी है उनको समझ आएगी, वो इस चीज़ को एक्सपीरियंस करेंगे कि एक एक्सपीरियंस कर और ये भी सीखेंगे कि हम अगर डिसिप्लिन मेंटेन करते हैं तो वो कितना आपके लिए आपके अपने लिए कितना वो फ़ायदेमंद है। ठीक है, परफॉर्मेंस एवेल्यूशन, परफॉर्मेंस एवेल्यूशन क्या होती है? परफॉर्मेंस एवेल्यूशन इज़ डिफाइंड एज अ फॉर्मल एंड प्रोडक्टिव प्रोसीजर टू मेजर and employees work and result based on their job responsibility। अब किसी भी आप ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, ठीक है, वो आपकी परफॉर्मेंस को जज करने के लिए, इवेलुएट करने के लिए कोई क्राइटेरिया उन्होंने बनाया होता है। तो आपकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं, आप कितने बेहतर तरीके से उसको सर अंजाम दे रहे हैं, कितना ऑनेस्ट है अपने प्रोफेशन के साथ। तो इस सबको मेजर करने के लिए, डेफिनेटली असेस करने के लिए उनका इवेल्यूशन कोई प्रोसेस होता है।
तो जिसके ज़रिए परफॉर्मेंस एवेल्यूशन को वो इंश्योर कर सकते हैं। तो इसको हम परफॉर्मेंस एवेल्यूशन कहते हैं। किसी भी इंडिविजुअल की, किसी भी एम्प्लॉय की, वो स्टाफ हो सकता है, टीचिंग, नॉन टीचिंग, और उसकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी को चेक करने के लिए जो है वो आप जो उसको क्राइटेरिया सेट करते हैं असेसमेंट का, वो परफॉर्मेंस एवेल्यूशन कहलाता है। परफॉर्मेंस एवेल्यूशन इज़ द असेसमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल परफॉर्मेंस इन अ सिस्टमैटिक वे। अब एक इंडिविजुअल पर्सन की आप असेसमेंट करते हैं और उसके लिए आपके परफॉर्मा कोई क्राइटेरिया सेट करते हैं, स्टैंडर्ड सेट करते हैं, जिसका आप उनकी परफॉर्मेंस को एवेलुएट करते हैं। परफॉर्मेंस मीन्स टू डू समथिंग एंड अप्रेजल मीन्स टू डिसाइड द वैल्यू ऑफ द वर्क डन। परफॉर्मेंस से पता चलता है कि आपने किस हद तक काम उम्दगी से किया है, अपने अपनी ड्यूटी को किस तरह से अंजाम दिया है। और अप्रेजल में होता है कि आपको अप्रिसिएशन, ठीक है, वोट ऑफ थैंक्स, और आपको इंकरेज किया जाता है, मोटिवेशन दी जाती है, अप्रिसिएशन मिलती है, ताकि आपको अंदाज़ा हो सके जो आप काम कर रहे हैं उसकी वर्थ वैल्यू कितनी है, आपको ज़्यादा मोटिवेशन, आपका लेवल जो है वो हाई हो सके। सच अप्रेजल आल्सो हैज़ बीन कॉल्ड एम्प्लॉयज़ रेटिंग, एम्प्लॉयज़ एवेल्यूशन, परफॉर्मेंस रिव्यू, परफॉर्मेंस एवेल्यूशन एंड रिजल्ट अप्रेजल्स। Performance evaluation is a systematic evaluation of the individual's respect for their performance on the job and his potential for the development. तो अब बेसिकली इसके अंदर आप इंडिविजुअल की ना सिर्फ वैल्यूएशन को एक्सेस करते हैं, असेसमेंट करते हैं, बल्कि उसके साथ साथ आपकी जॉब की देखते हैं कि उसका जॉब किस हद तक वो अपने प्रोफेशनल सिंसियर है, उसकी पोटेंशियलिटीज़ क्या हैं, और उसने अपने कितने हद तक अपने आप को इम्प्रूव किया है। प्रैक्टिसेस क्या है इफेक्टिव परफॉर्मेंस एवेल्यूशन के? परफॉर्मेंस एवेल्यूशंस मेजर प्रोग्रेस एंड हेल्प अ पर्सन सेट प्रोफेशनल गोल्स। द एनुअल परफॉर्मेंस एवेल्यूशन इज समथिंग एम्प्लॉयज एंड मैनेजर्स alike often fear. Yes, it can be a source of motivation, reward of both practices and are knowledgeable about how performance evaluation works. ठीक है, वो एंड ऑफ द ईयर कहते हैं कि देखते हैं कि थ्रू आउट आपकी ईयर की परफॉर्मेंस कैसी रही है, और फिर उसके बाद आपको अप्रेजल किया जाता है, आपको रिवॉर्ड दिए जाते हैं, आपको अप्रिसिएशन दी जाती हैं, ताकि आपको परफॉर्मेंस बेहतर है और दूसरे लोग भी मोटिवेशन हासिल कर सकें। इफेक्टिव परफॉर्मेंस एवेल्यूशन का क्राइटेरिया कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? एक्सप्लेन द अप्रेजल प्रोसेस, क्लैरिफाई जॉब एक्सपेक्टेशंस, रिव्यू एंड अपडेट जॉब स्किल्स, रिव्यू अकम्प्लिशमेंट एंड गोल्स, फाइनल स्टेप्स एंड रिवार्ड्स। ठीक है, इसमें सबसे पहले आपको मोटिवेट किया जाता है, आपको तारीफ़ की जाती है कि आप अच्छा काम करें, आपके स्टैंडर्ड बेंचमार्क्स क्या हैं, जॉब एक्सपेक्टेशंस क्या हैं, वो आपको क्लियर की जाती हैं। फिर आप उसका रिव्यू एनालिसिस करते हैं, आपकी जॉब स्किल, आपने किस हद तक इम्प्रूवमेंट आपकी पर्सनालिटी में या आपके वर्क में कितनी इम्प्रूवमेंट नज़र आई है, अपने गोल्स को, टारगेट्स को, डेडलाइंस को किस हद तक मीट किया है बेहतर तरीके से, विद इन टाइम पीरियड्स को कंप्लीट किया, और फाइनली फिर आपको रिवार्ड की शक्ल में आपको अप्रिसिएशन दी जाती है कि अगर आपकी अच्छी परफॉर्मेंस है एवेल्यूशन के बाद। 7 स्टेप्स टू परफॉर्मेंस एवेल्यूशन प्रोसेस: जॉब एनालिसिस, establishing performance standards, communicating the standards, determining the actual performance, matching the actual with the desired performer, discussing results, and decision making. What is the appraisal process? Basically, appraisal process in the appraisal meeting between a manager and employee, the manager should first explain the purpose and process of the performance evaluation. Then, generally, a performance evaluation is conducted to clarify job expectations, set goals for improvement, weaknesses, and reward for the accomplishment and overall performance. The manager's job is to explain the steps involved during and after the performance evaluation. ठीक है, अब इसमें वो कह रहे हैं कि अप्रेजल प्रोसेस तब स्टार्ट होता है जब आपकी एवेल्यूशन हो जाती है। आपकी परफॉर्मेंस को एवेल्यूट करने के बाद वो इस नतीजे पे पहुंचते हैं कि किस हद तक इम्प्रूवमेंट आई है, आपकी परफॉर्मेंस एवेल्यूशन के जितने भी स्टेप्स हैं, आपको अपनी जॉब के वाले से जो भी एक्सपेक्टेशन है, आपके गोल्स क्लियर हैं, आपने उनको किस हद तक अचीव कर लिया है, और ये आपकी कम्युनिकेशन होती है आपके बॉस के साथ या मैनेजर के साथ, और फिर वो आपको वोट ऑफ थैंक या अप्रेजल मोटिवेशन दी जाती है। क्राइटेरिया क्या होता है अप्रेजल का? दिस प्रोवाइड्स एन ओवरव्यू ऑफ द परफॉर्मेंस मैनेजमेंट एंड अप्रेजल इन अ स्कूल, backgrounding the context and purposes as well as the legislative framework. Once principal appraisal cycle is provided as an example of an approach fitting the intended development and accountability balance of the nationally mandated guidelines. ठीक है, अब इसमें वो कह रहे हैं कि आपके जो भी अपने क्राइटेरिया हैं, आपका जो बेंच मार्क्स हैं, जो भी आपने स्टैंडर्ड सेट किए हुए हैं, उसके अकॉर्डिंग आप उनकी परफॉर्मेंस को एवेलुएट करते हैं। और इफेक्टिव परफॉर्मेंस एवेल्यूशन सिस्टम हैज़ स्टैंडर्डाइज्ड एवेल्यूशन फॉर्म्स
परफॉर्मेंस मेजर, फीडबैक, गाइडलाइंस, डिसिप्लिनरी प्रोसीजर्स। इसके अंदर क्या है, डेवलप एंड एवेल्यूशन फॉर्म, आप एवेल्यूशन फॉर्म एक बनाते हैं जिस पे आप उनकी एवेल्यूशन करते हो। आइडेंटिफाई परफॉर्मेंसेस मेजर, और परफॉर्मेंस को मेजर करने का क्राइटेरिया सेट करते हैं। सेट गाइडलाइंस फॉर फीडबैक, गिव बैलेंस फीडबैक, आउटलाइन एक्सपेक्टेशन फॉर इम्प्रूवमेंट। ठीक है, तो ये इसके स्टेप्स हैं। थैंक यू सो मच, होप यू कैन अंडरस्टैंड टुडेज लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।